नहीं तो और रिकॉर्डिंग के लिए रोएगी। हाँ, सो फॉर द रीजन वी से दैट द रिकॉर्डिंग इट इज रियली ऑफ नो यूज इफ यू जस्ट get theory while watching videos if you don't practice. Now the practice will change slowly 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 into different ways. So for example, right now for this 5 days we will be only doing, भाई मैं एडिट नहीं करूंगा। हाँ, जब मैं बोलता हूँ मुंह शक्ल दिखाओ तब दिखाओ। हाँ, ओके, वेयर आई वाज। ओके, सो आई वाज सेइंग कि जैसे जैसे हम स्लोली स्लोली आगे बढ़ेंगे तो द प्रैक्टिस ऑफ द मेडिटेशंस विल बी चेंजिंग। इट्स नॉट ओनली द थीटा वेव्स, इट्स नॉट ओनली द डिफरेंट देन, जैसे जैसे हर हम और आगे बढ़ेंगे वी विल ऐड सम अदर concepts which is related with inner child healing, which is related with hypnotism, which is related with NLP, which is related with law, which is related with trauma, which is related with clinical therapy, which is related with n number of things. However, I am not a professional psychiatrist or something, but I do understand on the basis of field experience that there are certain back end level of things that really damages when you go out and burn yourself doing cold approaches. So if those things are not fixed, no amount of outer game can give you results. But the true commitment and of course the inner game is not a substitute to go out and test your skills, because the real test of whether you have really worked on your inner game will depend on how much you feel confident in yourself, how much your beliefs are sorted, how much you have really aligned yourself. Okay, तो चलो आते हैं, this is something about the 5 days and we talked about, एक मिनट यार कहाँ गया। हम्म, तो रिकॉर्डिंग देखने से कुछ नहीं मिलेगा ब्रो। द रिकॉर्डिंग्स आर जस्ट टू गिव अ थेरोटिकल पर्सपेक्टिव। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज यू शुड हैव a very solid level of practice. If the practice is not there, trust me, you are carrying another level of bullshit ego. एक पर्सन था, देखना चाहता हूँ वो यहाँ है या नहीं। हाँ, एक पर्सन था भाई, पता है 8.5 9 साल से गेम में है, झाट ले नहीं हुआ है, और एक ही एक तरह के सवाल पूछते रहता है, भाई मुझे तेरा टाइम चाहिए, मुझे तेरा टाइम चाहिए। अबे क्यों चाहिए भाई? क्या तूने मुझे पैसा दिया है क्या, कि कुछ ये दिया है क्या? क्यों चाहिए, क्यों? भाई द फर्स्ट प्रायोरिटी इज फॉर माई द स्टूडेंट्स ऑफ द बूट कैम्प, बिकॉज दैट्स द पीपल आई रियली लाइक, दे हैव इन्वेस्टेड देयर समथिंग। मैं बोला यार कम टू द इनर गेम, आई एम देयर एज लाइक आफ्टर द क्यू एन ए सेशन, आस्क मी एज मच यू वांट। बट उसको नहीं, वो है उसको सेपरेट टाइम चाहिए। क्यों चाहिए भाई? मुझे खाने को टाइम नहीं मिलता है कभी कभी। सो everything is covered in everything. I have invested, like whether you say NLP, whether you say public speaking, whether you say any kind of hypnotism, whether you say it's like any type of kriya, any type of everything I have done. So my vision is like, of course, the entrepreneurship section is there. If someone is like to willing to start, but it's only for the people who are very, very, very serious. Because the reason is I don't mind कि if the person says कि भाई इनर गेम का सेशन तुम कर दोगे क्या वैसे ही फ्री में, बट आई वांट द पर्सन हु इज वेरी सीरियस। क्योंकि सीरियस मतलब वो दिखना तो चाहिए यहाँ पे, बिकॉज द रीजन इज किसी का भला करने जाओ अपने ही लग जाते हैं। द मैसेज ही गिव्स आउटसाइड इज वेरी नेगेटिव। So that's the reason I want a very selective people, or at least serious people, at least they know what, why and what we do. नहीं तो ऐसा नहीं कि किसी सेल्फ हेल्प कोच का मेरे ऊपर लेबलिंग लग गया, या फिर किसी बिजनेस कोच का मेरे ऊपर लेबलिंग लग गया। आई एम अ डेटिंग एंड पिकअप एंड रिलेशनशिप कोच, आई टीच बूट कैम्प, आई टीच कोल्ड अप्रोच, सो कीप दैट इन माइंड। बट ऑफ कोर्स, to get the outer things better, you have to work on the certain level of personal development aspect, certain level of mindset aspect, certain level of belief aspect, certain level of conditioning aspect। क्योंकि मैंने अपने ऊपर वो बहुत खर्चा किया है, तो एटलीस्ट गेम रिक्वायर सर्टन लेवल ऑफ बेसिक लेवल ऑफ थिंग्स। ओके, चलो, we understand something about the neurological pathway. See, game is based on the creativity aspect. Creative aspects are very important, especially when it comes to social intelligence. The more different variants you do, the more zigzag things you do, you form those patterns, and that's the reason the adventurous people does very good in game. Have you ever got a thought about someone who is a dancer, who is a musician, who is an artist, who is a painter? Why they are the person who never have to work on the relationship aspect? Why they are so
गुड नेचुरल्स। कोई बता पाएगा इसका जवाब क्या है? Why is the reason? The person who is amazing salsa bachata dancer, or the public speaker, or the person who is like an NLP coach, or the person who is like a musician, or the person who is like a solo traveler or a travel coach, or the person who is in terms of like a basketball legend, or some some kind of artist. I will say artist, not a pickup artist. But why is that he generally gets woman, or he is most of the time 80 to 90% time, 70 60% of time he's natural? Why is that? But इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसे लोगों को काम नहीं करना पड़ता. I have the student who is a DJ, who hangs around with a lot of amazing chicks, but he is virgin and his dating life is fucked up. I have the person who works in films, literally he's an actor, professional actor, बट वो काफी काफी सीरियल्स में आया है, साउदर्न इंडिया में आया है, काफी काफी अलग अलग जगह पे आया है. एंड ब्रो ही इज टेरिबल. द ओनली थिंग, ऑफ कोर्स ही हैज सर्टेन एडवांटेज, बट 60 70% of the chances that they are automatically good naturals. Why is that so? They have a good inner game and neuro pathways. हाँ, good inner game. Why? न्यूरो पाथवेज तो अच्छी बात है, क्योंकि वो हर वक्त प्रोफेशन में कुछ नया होते रहता है उनके प्रोफेशन में. इसके वजह से their creative side is good. Think more deeper. You are very near, Pawan. ऐसा क्यों? भाई अगर दिमाग नहीं लगा सकते हो, अगर इतना सोशल इंटेलिजेंस नहीं है, तो तुम्हारे लिए गेम बहुत 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 डिफिकल्ट है बाबा. हाँ. Then we yesterday covered about something about the Maslow's need also. It's like we talked about the vibrations also. ये सब रिकॉर्डिंग्स आपको मिल जाएगी, बट रिकॉर्डिंग से कुछ नहीं मिलेगा भाई. यू आर वेस्टिंग योर टाइम. रिकॉर्डिंग देख देख के इन्फॉर्मेशन का भंडार बनाना है, अगर प्रैक्टिस नहीं है. दे एक्सप्रेस एंड इम्प्रेस. हाँ, टू सम एक्सटेंट दे एक्सप्रेस एंड इम्प्रेस, बट good salesperson can also sorry, good technical person can impress and express. It's related with the structure of mind. नहीं पता है? Okay. So the most important thing is, the most important, ये सब कल हो गया है, emotion ये सब. The most important thing is the brain. The brain, one is the logical brain and the another is creative brain. The guys who are amazing level of naturals, if you really want to enhance your natural qualities in your life, you have to train your creative part of brain. Creative part of brain is something that it's like एक ब्रेन का एक पार्ट होता है. ब्रेन को ऐसे दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है. वन इज द लेफ्ट पार्ट, वन इज द राइट पार्ट. वन इज द लॉजिकल ब्रेन, द अनदर इज क्रिएटिव ब्रेन. तो 24 घंटे हम जो काम करते हैं, 24 घंटे काम करते समय, अगर आप ऐसे पर्सन, आप कोडर हो, आप सीए हो, आप फाइनेंसेस में बहुत ज़्यादा काम करते हो, आप मैथमेटिकल कैलकुलेशंस बहुत तगड़े कर लेते हो, तो आपने कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका लॉजिकल ब्रेन बहुत ज़्यादा एक्टिव है. ऐसे ऐसे दो पार्ट होते हैं ब्रेन के. तो बहुत कम, मैंने कहीं पढ़ा था कि 13% लोग ही लेफ्ट ही होते हैं इस दुनिया में. तो इट्स, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बाय डिफॉल्ट पर्सन की लाइक, बट जनरली मैक्सिमम लोग जो क्रिएटिव प्रोफेशंस में होते हैं ब्रो, वो उनका पाथवेज, मतलब देयर ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी. ऐसा लाइक ब्रेन डोमिनेंस थ्योरी समझो कि कुछ लोगों के ब्रेन इतने ज्यादा लॉजिक होते हैं कि उनके लिए बहुत डिफिकल्टी और बहुत प्रॉब्लमैटिक होता है कुछ भी इनलॉजिकल सोचना. जैसे मेरा ऐसा था कि एक व्हेन आई वाज ट्राइंग टू लर्न एंड अप्रोच लॉट ऑफ पर्सन, कि वो मेरा कोच बोलता था, भाई तुम कुछ भी ओपन कर सकते हो. अरे कुछ भी कैसे करूं भाई, मेरे को थोड़ा कंटेक्स्ट तो दो. नहीं ब्रो, ऐसा नहीं होता है, मैं तेरे को कंटेक्स्ट नहीं दे सकता. अरे भाई थोड़ा दो, मेरे को नहीं समझता है, मैं बहुत ही लॉजिकल, हार्डकोर लॉजिकल पर्सन हूँ. मेरे को लॉजिक किसी को बात ही नहीं समझती है. एंड आई एम स्टिल वेरी लॉजिकल पर्सन. इट्स नॉट दैट आई एम नॉट अ वेरी, बट गेम करते करते थोड़ा मेरा क्रिएटिव माइंड भी अच्छा काम करने लग गया था. सो इफ योर राइट ब्रेन इज वेरी एक्टिव, like it's always a vice versa. So you have to train your brain. If you now you have to understand which side of, like, so for example, learning good with calculations, the right side of the body, right side of the brain, it becomes very right side of training brain will make you more creative, and left side of the brain will make you more logical. It's that simple.
It's like now your left brain is always logical, analytical, linear, verbal, factual. Now the important thing is analyze your day schedule, analyze your entire timing, analyze your everything in life. कि आप लॉजिकल वर्क ज्यादा करते हो या क्रिएटिव वर्क ज्यादा करते हो, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज्यादा करते हो या एक्सपीरियंशियल थिंग्स पे ज्यादा काम करते हो। एक्सपीरियंशियल थिंग्स पे ज्यादा काम कर रहे हो तो भाई आपका ब्रेन। और अभी आप, now my question is like if you really want to develop your skills with woman, I was like, if you want to big amazing level of natural guy, if you want to really guy who is having success with woman, so you have three options. Number one, you need to have your your सुनना अच्छे से सुनना भाई, you need to have your left side of the brain, logical brain, very powerful. You need to have B option, you need to have your right brain very very powerful, मतलब जो एक्टिविटीज है जैसे म्यूजिक है, पेंटिंग है, डांस है, घूमना है, ये सब है, ये क्रिएटिव साइड को एनहांस करेगी। यू नीड टू हैव योर क्रिएटिव ब्रेन वेरी पावरफुल, और यू नीड टू हैव योर नन ऑफ देम, दोनों नहीं। और चौथा ऑप्शन है डी, डी ऑप्शन है बोथ इक्वल। इफ यू वांट टू बी रियली गुड विथ वुमन, ओके, इफ यू रियली वांट टू बी गुड विथ वुमन, आपका कौन सा ऑप्शन? ए लॉजिकल ब्रेन, मैथमेटिक्स करो, कोडिंग करो, फाइनेंशियल चार्ट शीट्स देखो, स्टॉक मार्केट देखो, कैंडल स्टिक देखो। भाई मैं ये यूट्यूब पे जाता है रवि, ये यूट्यूब पे अपलोड करना पड़ता है और मेरा, तो आपको आपका कौन सा साइड? ए ऑप्शन लॉजिकल ब्रेन, दूसरा दूसरा ऑप्शन समझो क्रिएटिव ब्रेन, तीसरा ऑप्शन समझो नन ऑफ देम, और चौथा ऑप्शन बोथ। तो इफ यू वांट टू बी रियली गुड ऑफ नेचुरल, गुड लेवल ऑफ नेचुरल, विच ऑप्शन यू विल चूज? ए बी सी डी? देखते कौन बनेगा करोड़पति। ओके, ऋषभ सिंह फोर्थ, डी, डी ना, बोथ ऐसा बोलना है। हाँ ऋषभ का बोथ बोलना है। और कोई है? विघ्नेश सिंह बोथ, ऐसा कोई है जो बोल रहा है नहीं नहीं क्रिएटिव ही होना चाहिए? ओके, द गुड आंसर इज बोथ। The problem with that person who was very very illogical, very very different, उनका प्रॉब्लम क्या है ना, उनको ऐसे इशू आ जाएंगे, कैलिब्रेशन के इशू आ जाएंगे, ग्राउंडेडनेस के इशू आ जाएंगे, ओवर बैंटर, ओवर नेक, ओवर टीज करने के इशू आ जाएंगे। आपने कभी ऐसा ऐसा पर्सन से मिले हो जो बहुत बकचोद है, बहुत इनलॉजिकल है, बहुत ये है, बट स्टिल ही इज नॉट डूइंग गुड विथ वुमन, और बहुत ज्यादा एक्सट्रोवर्टेड भी है, बहुत ज्यादा ब्लंड भी है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू सक्सेस विथ वुमन ही इज लाइक वेरी वियर्ड, ही इज लाइक अ मैन चाइल्ड, ही इज लाइक समथिंग, ही इज लाइक बहुत ज्यादा बकचोद, बहुत ज्यादा किडिश, और बहुत ज्यादा स्क्रूड अप मेंटेलिटी, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम लेवल का नार्सिस्टिक पर्सनालिटी जो अपनी ही बात करते रहता है। इन पर्सन लोगों का होता है बहुत ज्यादा क्रिएटिव है, ये बिल्कुल लॉजिकल फैक्चुअल और अंडरस्टैंडिंग लेवल ही इनका कम होता है। इनका साला ऐसे वो लोग भी होते हैं जिनका दिमाग ही घुटने पे। द रियल आंसर इज बोथ, यू हैव टू बैलेंस एंड सिंक योर माइंड, एंड मेडिटेशन रियली डज दैट। मेडिटेशन से आपकी अवेयरनेस भी आती है, बट बहुत ज्यादा मेडिटेशन करोगे और बाहर काम नहीं करोगे तो फिर भी काम नहीं बनेगा। हो सकता है आप पहले इंट्रोवर्ट थे और इंट्रोवर्ट बन जाओ। That's very downside of meditation. That's the extreme wrong side of vipassana also. It's like पहली साला इंट्रोवर्ट था और विपासना करके आया, अब तो साला गूंगा ही हो गया वो, अब तो बात ही नहीं कर रहा है। For such people, such practices really doesn't help. So we have the combination of practice, but the combination of practice will happen after 10 days. So guys, take a pen and paper, write down, note down all the activities. 24 घंटे है तो 24 घंटे में से आप कितने घंटे आपके लॉजिकल ब्रेन को काम करवा रहे हैं या क्रिएटिव ब्रेन को काम कर रहा है? क्रिएटिव ब्रेन क्या है? म्यूजिक, पेंटिंग, ड्राइंग, सिंगिंग, ये सब चीजें क्रिएटिव है। कोडिंग, स्टॉक मार्केट, मैथमेटिक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब लॉजिकल ब्रेन को एक्टिव कराएंगे। तो इसीलिए जो बहुत सारे लोग हैं उनको ये दिक्कत होती है। दैट वॉज समथिंग अबाउट टुडे। जो काम नहीं करते व्यर्थ ही व्यर्थ है, कुछ नहीं मिलेगा थेरी से। ऐसे एक महान आदमी है जो हर बार जाके इस कोच को मिलता है, उस थेरेपिस्ट को मिलता है, ये करता है, वो करता है, ये करता है, ये करता है, और जिंदगी में काम नहीं करता।
मैं आपको कहता हूँ अगर आप 400 दिन अच्छे से ईमानदारी से काम करते हैं तो आपको 2 या 3 महीने में आपका गेम पूरा का पूरा, of course the outer game matters of course, getting the command over 65 technical aspects of game matters, नहीं तो ऐसा नहीं है कि उसकी प्रैक्टिस ना करोगे। of course there are certain verbal exercises that are important, of course there are certain things जो फील्ड में ही जाके समझती है, ऐसे नहीं समझती है अंडरस्टैंड, those things matter। तो वो तो बूट कैम्प में ही पॉसिबल है या फिर मेंटरशिप में पॉसिबल है। आगे, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, apart from that, it's very very crucially important that you do work on this aspect for 400 days. You do erase all your blocks, mental situations. So make a list of all the activities, whether how much time I'm spending being creative, or it's like मेरा 8 से 10 घंटा सिर्फ लॉजिकली होता है। एंड गेम वर्बा गोइंग आउट एंड चार्जिंग रियली एनहांसेस योर क्रिएटिव ब्रेन। दैट्स द रीजन इट सेज दैट डोंट वर्क ऑन पिकअप लाइंस। मुझे कोई तो भी पूछ रहा था यार कोई स्ट्रक्चर होता था ना, कि ओपन ओपन पे मैंने 10-20 ओपनर, फिर हुक के लिए मैंने 5-6 मटेरियल डिजाइन कर लिया, फिर वाइबिंग के लिए मैंने ये और मटेरियल डिजाइन कर लिया, ये सब मैं डिजाइन कर लूँ और डिजाइन करके अप्लाई करो तो गेम विल बिकम कैंट, एंड व्हेन इट बिकम्स कैंट इट स्टॉप्स वर्किंग, बिकॉज फिर आपने क्रिएटिव चीजों को ही लॉजिकल बना दिया। दैट्स द रीजन कभी कभी जब नेचुरली अपने अंदर से जब कंटेंट निकलता है ना तो बहुत अच्छा वर्क करता है। हम्म, एक मैं तुमको एक चीज बताता, जैसे फॉर एग्जांपल आई एम वेरी शॉर्ट गाय, आई एम लाइक अ 5'3" गाय, और मेरे हाथ भी देखोगे तो बहुत छोटे हैं, नॉर्मल पर्सन से छोटे हैं। अगर कोई लड़की का हाथ भी है तो वो मुझसे बड़ा होता है। तो एक बार क्या हुआ, तो कॉलेज में था मैं, और मेरे कॉलेज की एक लड़की थी, वो टॉल भी थी थोड़ी बड़ी भी थी। अरे राज तू कितना छोटा है ना यार, तेरे हाथ भी कितने छोटे हैं, तेरा 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 फेस भी कितना छोटा है, तो वो हंस रही। तो मैंने क्या बोला, भगवान ने जो चीज बड़ी चाहिए थी वो बहुत बड़ी दे दिया। उसकी ऐसी आंखें पॉम्प हो गई क्या। मतलब अबे शैतानी दिमाग, दिमाग की बात कर रहा हूं मैं। तेरा दिमाग कहीं और ही होता है। अरे नहीं 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 नहीं, इट इट केम नेचुरली फ्रॉम विद इन मी। तो वो बहुत परफेक्ट बैठा। और उसके बाद में वो लड़की चेस पे चेस की जा रही। उसके बाद में वो सेम चीज मैंने बहुत सारी लड़कियों पर ट्राई किया, जब जब ये सिचुएशन आती थी कभी वर्क नहीं किया। क्यों? क्योंकि भाई वो जो क्रिएटिव चीज थी जो विद इन निकली थी, उसको ही मैं लॉजिकल करता गया। दैट्स द रीजन। एक हमारे एक स्टूडेंट है भाई, दिखने में फाड़ू, हर चीज में फाड़ू, खतरनाक लेवल के, हर चीज में भयानक। तो मैंने उनको कुछ चीजें बताया कि मैं बोला भाई ये चीजें कर लो। फिर जब उनका बूट कैम्प था तो बूट कैम्प करने गए, तो मैंने बोला, तो मैंने एक ऑब्जर्व किया, क्योंकि कुछ चीजें तो देखने में ही समझती है भाई, वैसे समझती नहीं है। कुछ चीजें ऐसी होती है, जैसे मेरे जो स्टूडेंट होते हैं, जो मैं उनको बोलता हूँ भाई एक बार नहीं 1000 बार बूट कैम्प करो, लेकिन काम करके आओ, काम करके नहीं आओगे तो घर पे भेज दूंगा मैं तुम्हें। तो वो तो मेरे बहुत दिल के करीब होते हैं, और जो चिंगूस होते हैं उनको मैं 1-2 दिन में निपटा देता हूँ, हाँ ठीक है भाई। आ गए, तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इट्स लाइक, तो उन्होंने उसने क्या है ना, पूरी क्रिएटिव गेम को ही कैंड बना लिया। अब भाई वो वर्क कैसे करेगा, नहीं वर्क करेगा भाई। वो बोल रहा है, वो उसको लग रहा है कि वो बहुत ज्यादा क्रिएटिविटी डाल रहा है गेम में, पर वो क्रिएटिविटी को ही उसने लॉजिक बना दिया। वाला एक कोडिंग है क्या भाई, कि तुमने कुछ कोड्स लगा लिए हो गया भाई, हर वक्त आ जाएगा और लड़की डायरेक्ट तुम्हारे गोदी में बैठेगी। ऐसा नहीं होता है मेरे बाप। तो एंड उस पर्सन को समझाना भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता है फिर, क्योंकि वो हर चीज अपने लॉजिक और फैक्ट से देखने लगता है। गेम इज नॉट लॉजिकल मैन, इट्स मैजिकल थिंग। ओके भाई, कभी कभी रात में हुए लाइंस भी वर्क करते हैं, हाँ वो करते हैं भाई। देखो भाई, इफ यू बिलीव इन द मैजिक ना, it will happen, you will get late, but if you try to bring your intention in the logical way it won't happen। तो फिर आपके लिए गेम बहुत स्ट्रगल बन जाएगा, पेनफुल बन जाएगा। सो you have to work on the meditation, awareness part is the thing। डे 0 पे हमने स्टार्ट किया था, फिर डे 1 पे हमने थोड़ा बहुत किया, डे 3 पे हमने और सेटिंग की, पोस्ट वी अंडरस्टूड समथिंग अबाउट द पोस्चर्स, द करेक्शंस, द मेथड्स। रिकॉर्डिंग देखने से कुछ नहीं मिलेगा। रिकॉर्डिंग देख लो, सिर्फ पर्सपेक्टिव के लिए देख लो, चलते फिरते घूम के देख लो अगर कुछ मिस किया है तो। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि भाई आप प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस इज द की।
फिर 5 डेज का होगा, फिर 7 डेज पे हम अलग अलग प्रैक्टिस सीखेंगे, क्योंकि हम 10 डेज में हमको अप्लाई करना है। क्योंकि वो 10 डेज में जब अप्लाई करेंगे तो ही हमको कुछ रिजल्ट मिलेगा, नहीं तो इट्स कंप्लीटली वेस्ट ऑफ टाइम। एंड ऑफ कोर्स समवन इज प्लानिंग फॉर बूट कैंप इन बैंगलोर, इट्स ऑलरेडी 2 लोगों का ऑलरेडी फिक्स हो चुका है। द गाय आई थिंक बहुत ही एड़ा बंदा है यार। ये कौन है? एक बंदा है जिसने मेरे बूट कैंप के लिए एनरोल किया। तो गाइस यू हैव टू अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड कुछ चीजें, अपने लाइफ की कुछ चीजें। ये ये कॉमन सेंस की बात है, मुझे बतानी नहीं चाहिए लेकिन बतानी पड़ती है। इस पर्सन ने बूट कैम्प एनरोल किया था 20,000। आज मैं अकाउंटिंग देख रहा था, तो हम सब कुछ एक्सेल शीट पे ट्रैक करते हैं, किसने कितना दिया, कितने कितने दिया। तो उसमें वो पूरा पैसा मेरा तो होता नहीं है, उसमें बहुत सारा शेयर कौस्तुभ भाई का होता है, बहुत सारा शेयर अर्जो भाई का होता है, बहुत सारा थोड़ा बहुत एड एजेंसी को भी जाता है, उसमें से बच बच के कितना आता है। तो उसका कुछ रिमेनिंग पेमेंट बचा था 5,000। अब वो उसने एनरोल किया था भाई 2 साल पहले, तो अभी मेरे को बोलेगा कोई 15,000 में बूट कैम्प, तो मैं बोलूंगा भाई माफ करो मेरे को माफ करो, अभी नहीं हो सकता है। हाँ तो ब्रो गाइज, समझने की बात समझो, अगर ये एटीट्यूड आप में नहीं है तो आपकी जिंदगी में ले नहीं हो सकते। फिर आप मुझसे क्यों बुट कैम्प ले रहे हो? अबे आप जिंदगी में किसी से बुट कैम्प मत लो। आपका ना प्रॉब्लम टाइलर सॉल्व कर सकता है ना मिस्ट्री सॉल्व कर सकता है, क्योंकि आप अपनी ही प्रॉब्लम में खुद उलझे हो। आप अपने माइंडसेट के शिकार हो। तो बात ऐसी है ब्रो कि दिस इज समथिंग फॉर इफ यू हैव दैट माइंडसेट यू विल नेवर गेट लेट। ट्रस्ट मी, नो अमाउंट ऑफ बुट कैम्प कैन हेल्प। क्योंकि ब्रो द गेम रिवॉर्ड्स द पीपल हु हैव करेज। तो ये 2 साल पहले था, और इसने फिर बोला कि अरे बोले फ्लाइट का टिकट करना है। और फिर मेरे को वो ऊपर से ये भी बोल रहा है कि बैंगलोर में रहना मुश्किल है मेरा यार, वो जॉब ठीक नहीं है मेरा, 30,000 रुपये 35,000 का तो जॉब, 30,000 का तो जॉब है। मैंने कहा यार आपको भी पैसे देने हैं, और बंदा फ्लाइट से जा रहा है और रिटर्न फ्लाइट की टिकट देख रहा है, कहीं झारखंड वारखंड में रहता है कहीं यार। मैं बोला भाई 5 या 6 हजार की टिकट तुमको जाने आने में तो 12,000 रुपये लग रहे। मतलब मैंने कुछ बोला नहीं, बिकॉज क्या फर्क गिरता है यार, मैं उनको, मैं क्या उनका बाप हूँ क्या उनको समझाऊँ? 12,000 आपको जाने आने में, भाई आपको इतना कंफर्ट चाहिए अपनी जिंदगी में? अरे भोसड़ी के, मैं जब वो आएगा बूट कैंप में तब सुनाऊंगा, क्योंकि अब तक पैसे नहीं दिए, क्योंकि कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाते हैं। अबे मेरे को जब बूट कैंप करना था मैं 22,000 रुपये महीने की नौकरी करता था, और मैं दिल्ली से जनरल की टिकट पकड़ के गया था और नीचे पेपर डाले थे। और मैंने एक कोच का बूट कैंप किया था 15,000 रुपये दे के। उसने मुझे सिर्फ ओपन करना ही सिखाया 4 दिन, और वो उस समय उसका पॉपुलैरिटी था। और मैं पेपर डाल के सोया था, और मुझे 50 घंटे लगे थे पूना से दिल्ली पहुंचने को। और कहाँ सोया था? ये मेरा लेवल ऑफ डेडिकेटनेस था, ये मेरा एडॉप्टेबिलिटी या एटीट्यूड था। और मैंने बोला कुछ तो सीखूंगा भाई, उसका सीखा। बहुत सारी चीजें मुझे ऑलरेडी आती थी, मैं ये नहीं बोलूंगा कि उसका वुड कैम्प करने से मेरे लिए हुए, बट कुछ ऐसी एक दो चीजें थी जिससे शायद वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे, वो एक दो चीजें फिक्स हुई और नेक्स्ट वीक में फटाक से ले हो गया। उसके वीक में, उसके 6 दिन के बाद मेरा फिर से ले हुआ। लेकिन उसने मेरा टेस्टिमोनियल ले लिया, वो मुझे मैनिपुलेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। कि उसने एक मेरा टेस्टिमोनियल ले लिया, मैं नाम नहीं लेना चाहता उसका, बहुत बड़ा नाम है। कि उसने बोला कि ये बंदे ने देखो इतने सारे कोचेस के बूट कैंप लिए और ये किया, और देखो इसको रिजल्ट मिल गया, और मेरा बूट कैंप किया। भाई आई नेवर क्लेम इन माई लाइफ कि इट इज गोइंग टू बी इजी क्विक फिक्स, बट of course I guarantee one thing, that if you follow what exactly I say and you apply that, and no matter how much time you come to me, you apply that, क्योंकि मेरा भी एक टाइम कंस्टेंट है। Results are 100% guaranteed, I can write it down, but there are certain conditions that are applied applicable। तो अगर ये नहीं है तो भाई माफ करो मेरे को। This is sufficient for you, 400 days and at least some work, and of course one-on-one call, that is important। So work on it, because application is the key। if you don't apply it, अगर आपका ऐसा एटीट्यूड है ना ब्रो, तो आप मेरा बुट कैम्प लो या दुनिया में टाइलर का, डर्डन का लो, इज लाइक द बेस्ट इन द वर्ल्ड। दुनिया में आज इस वक्त सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस किसको होगा फील्ड में? एक तो टॉड को होगा, एक तो टाइलर को होगा। फिर 20-30 ईयर्स का एक्सपीरियंस बहुत लंबा एक्सपीरियंस होता है अपने लाइफ में।
और इनर गेम में सबसे ज्यादा किसका एक्सपीरियंस होगा? शायद जेम्स मार्शल का होगा। और उसके बाद में मेरे को नहीं लगता है इसके अलावा किसी का होगा। उसके बाद में मैं बोलूंगा सेकंड नंबर दुनिया में मेरा ही होगा। Inner game is something that you have to practice seriously and rigorously. Number one, I think, of course, James Marshall is something who is better than, who has really worked on the inner game, क्योंकि उसने 11 नहीं 12 बार विपासना किया है। और उसके अलावा भी उसने बहुत सारा किया है, शामेन, ये वो, ट्रैवल, जंगल में बड़ी बड़ी प्रैक्टिसेस। सेकंड नंबर पे मैंने किया है, मुझे नहीं लगा उसके अलावा मैंने आज तक किसी कोच को देखा है जिसने इतना काम किया है इनर पे। सो ऑफ कोर्स इनर गेम इज इंपॉर्टेंट। नाउ आई एम टू टेलिंग, ऐसा अगर आपका एटीट्यूड हो तो आपके लिए नहीं होगी भाई। You can't be is like, because agility and flexibility, you're like my father, it's like I'm when I meet such people now, they are like my father. I really have a huge father issues with him, my father also. It's not that he's a bad person, but he's very resistive person. 10 लाख की घर पे स्टाइल लगाया, तो 50,000 रुपये खर्चा किया टीवी पे, इस पे, शोकेस पोकेस पे। 20,000 रुपये का एक वॉशरूम, वो एक बाथरूम बांधा हमारा जो उधर घर था। और पेपर पढ़ते हैं, और मैंने बोला यार विराट भैया आ रहे हैं, इतने बड़ी पर्सनालिटी है, विराट विराट चरानिया, आर्ट ऑफ लिविंग के बहुत बड़े टीचर है, इंटरनेशनल टीचर है, टेडेक्स स्पीकर है। विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी, सोनू शर्मा, उसके बाद में इवन द ग्रैंड कार्डन जैसे लोग उनके स्टूडेंट्स रहे। इतनी बड़ी पर्सनालिटी आ रहा है कोला में, लोग कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। मैंने बोला भैया इनको, तो मेरे पिताजी का डायलॉग था, वे जीवन जीने की कला क्या होता है बोले, मतलब जिंदगी मेरा जीना मेरे को, और ये सिखाने वाला वो कौन है शायना। हाला भाई माफ करो, मेरे को बख्शो। इट्स लाइक ऐसे पर्सन को मिलने के लिए 3 दिन अगर उसके उसके सानिध्य में मुझे रहना पड़े, तो भाई मैं जुआ खेलूं सबसे बड़ा, जुआ खेलूं सबसे बड़ा, 10 10 नहीं 50,000 भी देने पड़ रहे हैं, तो मैं 1 सेकंड ना लूं। बस मुझे 10 या 15 20 मिनट मिल जाए उस पर्सन के साथ में। दिस इज माई एटीट्यूड। और मैंने ऐसा किया भी है, ऐसा मैंने किया भी है। तो this is something about the attitude, and there is a wonderful book that you must read, Attitude is Everything, by केलर नाम है उस किताब का, ऑथर का। एक एटीट्यूड इज एवरीथिंग, मेरे को याद नहीं आ रहा है यार। तो उस किताब का नाम क्या है? किताब दिखाता हूँ मैं तुमको। ओके, सो योर टास्क एंड असाइनमेंट इज राइट अ पेन एंड पेपर, evaluate your 24 hours. In that 24 hours, how much you are logical and how much you are attitude. हाँ, ये आ गया, जेफ केलर, दिस इज द बुक। रीड दैट बुक, इट्स 100% वेरी मस्ट रीड। छोटी सी बुक है भाई, 2 या 3 घंटा लगेगा पढ़ने को, बट ये चीज तुमको कुछ और देगी। एंड देर इज अनदर थिंग दैट आई वॉन्ट यू टू लिसन, इट्स अ फाउंडेशन लेवल ऑफ सक्सेस। जितने भी लोग हैं, नेपोलियन हिल, उसके बाद में उस जमाने के रॉकफेलर, उस जमाने के मतलब वॉरेन बफेट, बिल गेट्स, दे इवेल्युएटेड सक्सेस के तो बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लेकिन एक पैरामीटर ऐसा है कि उन्होंने देखा है कि जितने लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों ने वो 25 मिनट का ऑडियो जरूर 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 सुना था। ये मतलब ये उन्होंने 10,000 लोगों को जब टैली किया उस जमाने में, जब पर्सनल डेवलपमेंट फाउंडेशन की वो दुनिया रखी गई थी, तो उन्होंने ये देखा था कि उन्होंने ये ऑडियो सुना था। और ये ऑडियो का बहुत बड़ा सीड है, सीड मतलब समझते हो। अब ऐसा नहीं सब सभी सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये ऑडियो जिन जिन ने सुना था, ये लोग कभी ना कभी कामयाब हुए ही है। और इस ऑडियो की खासियत है कि ये ऑडियो आपको 30 दिन तक सुनना पड़ता है। और उस ऑडियो का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग, और वो मैं आपको भेजूंगा। और उस ऑथर और जिसने वो आवाज बोली है उसका नाम है अर्ल नाइट एंगल। द मैजिक वर्ड एटीट्यूड, वो ऑडियो भेजूंगा, वो सुनो। वो 30 दिन तक रेगुलर सुनने का असाइनमेंट दिया था मुझे मेरे टीचर सिद्धार्थ राचे के। ऐसे आप एटीट्यूड चेंज करो भाई। लड़कियां तो गुलाम होती है उनकी, जिनका एटीट्यूड बहुत तगड़ा होता है, और जिनका एटीट्यूड ऐसा होता है ना ब्रो। अबे मेरे को खुद को मजा नहीं आता है इनके साथ में रहने को। मेरा एक स्टूडेंट है, अक्षय, अमेजिंग अमेजिंग पर्सन। मैं पुणे आया था, मेरा तो होटल बुक था, मेरा सब कुछ बुक था, मेरा
सब कुछ सही था। और वो भाई, उसने मेंटरशिप में भी फाड़ा है, उसने 3 या 4 एफ क्लोजेस किए। तो अक्षय भाई का ऐसा था कि वो बोले राज सर ऐसा ऐसा है, ये है वो है। मैंने बोला ठीक है अक्षय भाई, कोई दिक्कत नहीं, चलता है, आई डू अंडरस्टैंड ऑल दोस थिंग्स। तो मैं जब पुणे गया, अरे नहीं नहीं, बोले मेरे यहाँ पे रहना पड़ता है आपको, ऐसा ऐसा, अब मैं कोच हूँ तो ज़्यादातर लोग मेरे को वेलकम करते ही है। बट मैं बोला यार, इस पर्सन के साथ में घूमना और मज़ा, मज़ा आ जाएगा इसके साथ में, नॉट जस्ट बिकॉज ही गेट्स लेट, नॉट, दैट्स नॉट द रीज़न। क्योंकि मैं ज्यादातर गेमर लोगों के साथ में रहता भी नहीं हूँ, मैं अपने नॉर्मल दोस्तों के साथ में। पर उस पर्सन की बात ही कुछ अलग है, उस पर्सन का वाइब, उस पर्सन का एटीट्यूड बहुत अलग है। तो आया, मतलब मैं उसके रूम पे सोया। तो भाई, रूम पे 8 लोग रह रहे हैं उसके। ऑफ कोर्स फाइनेंशियली थोड़ा वो डिप्लीटेड है। तो 8 लोग रह रहे हैं, वो वारजे में रहता था, तो उसने मुझे उसका बेड दे दिया, उसकी जगह दे दी है, और भाई तुम सो एडजस्ट करो। वो मुझे हार्डली 4 दिनों में 1 या 2 बार मिला होगा, वो भी 15-20 मिनट के लिए, क्योंकि वो अपने लाइफ में कहीं स्ट्रगल कर रहा था। तो मैंने तो उसको बोला भाई तुम आ जाओ यार, तुम मेरे को पसंद आए, तुम्हारे साथ में मिलके एकदम दिल खुश हो जाता है। ऐसे पर्सन को मिलने को, अभी अभी उसके लाइफ में प्रॉब्लम है, मैंने बोला ब्रो बिंदास आ जा, मेरे यहाँ पे आ जा, पूरा अपना नीचे का फ्लोर खाली है, तेरे को जितने दिन रहना है जो करना है वो कर, कोई इशू नहीं। और जब तक तेरी सिचुएशन सॉर्ट नहीं होती तब तक रहे मेरे यहाँ पे। दिस इज एटीट्यूड। उसका एटीट्यूड बहुत सही है। और उसके, उसको ले इसलिए नहीं मिले क्योंकि वो बहुत गुड लुकिंग है, ले इसलिए नहीं मिले कि उसकी जेब में पैसा नहीं है, ले इसलिए मिले कि उसका एटीट्यूड एकदम राजाओं की तरह है। मुझे अभी याद है, मैंने होटल बुक किया है भाई, मेरे पास में तगड़ा पैसा है, मैं बूट कैंप लेने आया हूँ, और वो बोल रहा है नहीं नहीं सर आप रहने दो। अरे मैंने बोला पगला वगला है क्या, तेरे लौड़े लगे हैं जिंदगी में, तू बोल रहा है नहीं नाश्ते का खाने का मैं दूंगा, और तू 200 रुपये उधारी लेके चल रहा है। एटीट्यूड, ऐसा पर्सन के साथ में, जब मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन के साथ में टाइम स्पेंड करूं, नॉट बिकॉज ही इज नॉलेजेबल, नॉट बिकॉज उसने किताबें पढ़ी है, नॉट बिकॉज ये सब, बस जिंदगी में एटीट्यूड, एटीट्यूड की कमी है उस पर्सन की और इस पर्सन की। उस पर्सन को 35,000 रुपये महीना है, एटीट्यूड की कमी है भाई। एडजस्टेबिलिटी नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ये डेवलप करो, लड़कियां गुलाम होगी आपकी, क्योंकि ये बेसिक वर्क है, ये आपको किसी बूट कैंप में सीखने नहीं मिलेगा, आपको कहीं सीखने नहीं मिलेगा। अगर आपका है ना ये ऐसा चाहिए वो ऐसा चाहिए, एडॉप्टेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और करेज, ये चीजें नहीं है ना आपके पास में, आपका कुछ नहीं हो सकता। आप आप क्या दिखाना चाहते हो, किस लाइक ये वो, और वो डंके की चोट पे होता है ब्रो। वो एटीट्यूड, वो बहुत लाने को टाइम लगता है, वो स्टिंजी एटीट्यूड। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी कुछ नहीं मिलेगा। अभी ऑलरेडी 11:06 हो गए, 11:25 का अलार्म लगाते हैं और फिर मेडिटेशन करें। ये लेक्चर सुन के कुछ नहीं मिलेगा, जिंदगी झंड है और झंड रहेगी। रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज है, यू अप्लाई, इफ यू डोंट अप्लाई, इफ यू डोंट प्रैक्टिस, एवरी वर्ड इज बुलशिट। एक आधा घंटा अगर आप अधिष्ठान में नहीं बैठ सकते, सांस पे कंट्रोल नहीं कर सकते, आप अपनी बैकबोन इरेक्ट नहीं रख सकते, आप विदाउट मूवमेंट स्ट्रांग संकल्प के साथ में नहीं बैठ सकते, ये लेक्चर से कुछ नहीं मिलेगा आपको। ओके, तो इट्स इंपॉर्टेंट वी प्रैक्टिस दैट, बिकॉज ट्रेंड इज विल बी मोर डिफिकल्ट।